وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سارے احباب مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کے دربار گہربار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و مکرم حضرات و سامعین، وقت مختصر نہیں بلکہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں نے یہی چاہا کہ میں تقریر نہ کروں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ ختم نہیں اوپر ہو چکا ہے کافی، تو صرف یہ کہ حافظ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں 5-10 منٹ میں حاضری لگوا دیتا ہوں۔ ہمیں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں راولپنڈی سے آیا ہوں تو کم از کم اس چیز کا خیال رکھا جاتا، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ صرف 10 منٹ نہ آپ تشریف رکھیں، نماز میں نے بھی پڑھنی ہے، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی۔ یہ اصال ثواب کی بزم ہے، اصال ثواب کی یہ بزم ہے۔ آپ دیگر ادیان باطلہ کا مطالعہ کریں نا تو کئی ایسے مذاہب ملتے ہیں کہ جن کا جب کوئی مر جاتا ہے نا تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کی لاش کو آگ لگا رہا ہوتا ہے، بھائی اپنے بھائی کی میت کو جلا رہا ہوتا ہے، لکڑیوں پہ رکھ کے آگ لگا دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں، توجہ سے جملہ سننا، کچھ ایسے ہیں جو جلا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھلا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو جلا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھلا دیتے ہیں۔ رب کا کرم اتنا ہے، ہم نہ جلانے والے ہیں نہ بھلانے والے ہیں، بلکہ ان کی یاد میں محفلیں سجانے والے ہیں، اور زمانے کو بتاتے ہیں زمانے والوں مر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے منقطع نہیں ہوتے، ہمارے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، ہمارے رشتوں میں انفصال نہیں آتا، بلکہ مر جانے کے بعد بھی اتصال برقرار رہتا ہے۔ ہم محفلیں کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں زمانے والوں جب بندہ مر جائے تو اصل وفا کا وقت وہی آتا ہے۔ اب مطلب ختم ہو گئے، اب مطلب مٹ گئے، اب وفا کا وقت ہے، اور جب وفا کا وقت آتا ہے تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھانا، بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں نے محفل نہیں سجانی، بلکہ بیٹا یہ کہتا ہے قرآن بھی پڑھانا ہے اور محفل بھی کرانی ہے، اور بتانا یہ ہے کہ میں وہ خوش نصیب بیٹا ہوں، اور میرے باپ نے میرے روح میں اور میرے خون میں وہ عقیدہ رکھا ہے کہ میں قرآن پڑھتا بھی ہوں اور قرآن کا ثواب بھی منتقل کرتا ہوں۔ یہ ہے عقیدے کی بہار۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عقیدے کی بہار۔ اب دیکھیں نا، اس پہ دلائل اتنے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ راتیں ختم ہو جائیں لیکن باتیں ختم نہ ہو۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفر ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ چوتھے 40ویں یہ گھڑے گئے ہیں،
मैं कहता हूं घड़े नहीं गए, कुरान और सुन्नत से पढ़े गए हैं। और फिर जो इन 7-8 मिनटों में एक पैगाम देना चाहता हूं स्पेशली वो ये है कि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में मां की फजीलत को बड़ा बयान किया जाता है। बेटा गाड़ी लेता है तो गाड़ी के पीछे ये क्या लिखा था, ये सब मेरी मां की दुआ है। जब मिलता है नाथखान आते हैं स्टेजों पे तो मां की शान फरमाइश होती है, मां की शान पढ़िएगा। कभी किसी ने यह भी कहा कि जनाब बाप की भी शान पढ़े। बाप किधर है? क्या बाप का दीन के अंदर कोई मुकाम नहीं है? सुने आप तवज्जो से सुने और समझे कि बाप का मुकाम कितना है। बेटे की जन्नत मां के कदमों के नीचे है, लेकिन उस मां की जिसके कदमों के तलबों में रब ने जन्नत रखी है, जरा उससे पूछो कि तुम्हारी जन्नत कहां है। सो रहे हैं आप या आपको उर्दू समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है ना? ज़ौक़ से बोले ना। मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं टाइम का पाबंद हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। बेटे की जन्नत मां के कदमों के नीचे है, लेकिन उस मां की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? वो जो तुम्हारा बाप है, वो जो तुम्हारा बाप है ना, उसके फर्मा बरदारी और उसकी तरफदारी और उसकी पैरोकारी में रब्बे जुल जलाल ने तेरे मां की जन्नत रखी है। वो बाप फिर कितना अजीम है जिसकी खिदमत में तेरे मां की जन्नत है। बताया ये जिस बाप को तू समझता कुछ नहीं है ना और कह देता है कि सब मां की दुआ है, नहीं, ये बाप है जो तेरी खातिर मजदूरी करता है। ये बाप है जो तेरे ऊपर साहिबा बन के रहता है। ये बाप है जिसने गुर्बत में भी तुझे शहजादा बना के रखा। ये बाप है जो तेरी खातिर सारे कबीलों से लड़ जाता है। ये बाप है जो तुझे बादशाह बना के रखता है। ये बाप है जो गरीब होकर जेब खाली रख के भी तुम्हारी फरमाइशें पूरी करता है। वो गरीब था, ये सिर्फ उसे पता था, तुझे नहीं। वो गरीब था, वो बेटियों की फरमाइशें पूरी करता था। वो ये नहीं कहता था बेटी जेब खाली है, परस में कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, वो जिसने तुम्हें शहजादा बना के रखा, आज उसकी इज्जत कर, उसकी खिदमत कर, उसे बादशाह बना के रख। क्योंकि शहजादे गुलामों के नहीं, शहजादे बादशाहों के हुआ करते हैं। पता नहीं बाप किधर गया, बाप की शान ही किधर गई। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। रब राजी हो, बाप राजी हो जाए तो रब भी राजी हो जाता है, और बाप नाराज हो जाए तो रब भी नाराज हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हज नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि उम्रा नहीं करना चाहिए। नहीं, हज भी करना चाहिए, उम्रा भी करना चाहिए, तवाफ भी करना चाहिए, मिना में भी जाना चाहिए, अरफात में भी जाना चाहिए, मुज़दलिफा में भी जाना चाहिए। लेकिन रब ये कहता है अगर तुम बाप को नाराज करके आए हो मेरे काबे में तो ये तेरे चक्कर है, तवाफ नहीं। पता नहीं समझे कि नहीं समझे? ये तेरे चक्कर है, तवाफ नहीं। सजदे कर रहा है, ये टकरे हैं, सजदे नहीं। अगर रोजे रख रहा है तो वो फाके हैं, रोजे नहीं। अगर फाकों को रोजे बनाना चाहता है, अगर चक्रों को तवाफ में बदलना चाहता है, अगर तू चक्रों को सजदे बनाना चाहता है तो लाजिम ये है कि बाप को राजी कर, बाप की खिदमत कर, बाप को राजी कर। जब तू छोटा सा था तू एक बात को कई बार पूछता, वो बाप तुझे जवाब देता, तू सीधा बोल नहीं सकता था, तेरे मुंह में दांत नहीं थे, पावर स्पीकिंग नहीं थी, तू बोलता था तो समझ कोई नहीं आती थी क्या बोल रहा है। खाने का वक्त आता तो तू रोटी खा नहीं सकता था, मुंह में दांत नहीं, तो वो तुम्हें दलिया बना के देते, वो तुम्हें दलिया बना के देते। तू बोल नहीं सकता था, लेकिन तू तोतला बोलता, वो उसको भी इंजॉय करते।
एक बात को तू 10 बार पूछता, वो बार बार तुम्हें जवाब देते। वो जब तू चल नहीं सकता था, वो तुम्हें हाथ का सहारा देके तुम्हें चलाते कि बेटा गिर ना जाए। आज वो ही सारी बातें पलट के आई है मां बाप पर। अब बाप बोलता है, समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। कल तू बिस्तर पे पेशाब करता, तेरी मां को तेरे पेशाब की स्मेल नहीं आती थी, आज वो कर रहे हैं। लेकिन आज तू कहता है बाप यहां थूका भी ना कर, मां इधर ना थूका कर, जरासीम होते हैं थूक में। अगर मां बाप के थूक में भी जरासीम होते हैं, लेकिन उन्हें तो तुझे तेरे पखाने से भी नहीं आते थे। आज वो रोटी खा नहीं सकते, उन्हें दलिए की जरूरत है। आज वो बोल नहीं सकते, वो एक बात कई बार तुझसे पूछते हैं, तू पहली बार ही तंग पड़ जाता है। नहीं, ये सारी बातें तुझ पे आई थी। कल तू भी अपने कपड़ों में पेशाब करता था, कल तू भी रोटी नहीं खा सकता था, कल तुझे भी सहारे की जरूरत थी। लेकिन ऐसे सारे मरहलों में मां बाप ने तो एक नहीं 4 बच्चों को भी मुस्कुरा के पाला है, और तुम 4 बेटों को एक बाप भारी पड़ रहा है। नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि मां बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ो। नहीं, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये बताता है, इस्लाम ये समझाता है कि मां बाप की खिदमत करो। बाप राजी हो गया तो रब भी राजी हो जाएगा, मां राजी हो गई तो फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, रब्बे जुल जलाल तुमसे राजी हो जाएगा। और जमाना ये कहता है, किताबें ये बोलती है कि रब राजी तो सारा जग राजी, सारा जग राजी हो जाएगा जब तुझसे रब राजी हो जाएगा। आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अकीदे के लिहाज से। ये सारी चीजें मां को इज्जत मिली है तो दहलीज़े मुस्तफा से मिली है, बाप को इज्जत मिली है तो दहलीज़े मुस्तफा। अंग्रेजों ने नहीं बताई, अंग्रेजों ने नहीं कहा कि जनाब मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आज की बेटी सर पे दुपट्टा नहीं करती, क्यों? मैं ड्रामे देखती हूं, पर्दा नहीं करती, क्यों? बस ये ड्रामे देख देख के बिगड़ गई। नौजवान है, फिल्में, ड्रामे और बिगैरती और म्यूजिक सुन सुन के अपना किरदार, अपनी आंखें, अपना कैरेक्टर बिगाड़ चुके हैं। ये अमल में इतना बिगाड़ कहां से आया? कहा कोई फिल्मों का दिलदादा हो गया, कोई ड्रामों का दीवाना हो गया। जनाबे वाला कोई किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, मेरा ये फेवरेट है। अरे मुसलमानों के फेवरेट वो बेहुदा एक्टर नहीं होते, मुसलमानों का फेवरेट मदीने वाला हुआ करता है। मुसलमान ये नहीं कहता कि रूह की गजा म्यूजिक है, वो ढोल की थाप पे नाचता नहीं है। वो अगर मसरूर होता है तो कुरान की आयतें पढ़कर, वो नाते पढ़ के और नाते सुनकर, करीम आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़ के वो खुश होता है। तो इस्लाम गाने सुनने का नहीं कहता, इस्लाम नमाजें छोड़ने का नहीं कहता। आज एक शख्स, एक नौजवान फैशन का दिलदादा नमाजें छोड़ रहा है और कहते क्या है कि हम हुजूर के आशिक हैं। बाजार में जाए तो आंखें गंदी, मोबाइल देखो तो मोबाइल गंदा। क्या है ये? हुजूर के आशिक हैं। नमाज एक नहीं पढ़नी, कहना क्या आले बैत से बड़ा प्यार है। इमाम जाफर सादिक 2000 नफल पढ़ा करते थे। तो हुजूर की मोहब्बत बेनमाजी नहीं, नमाजी बनाती है। हुजूर की मोहब्बत इंसान को लोफर नहीं, बाकिरदार बनाती है। हुजूर की मोहब्बत इंसान के लबों पे गालियां नहीं, दुरूद और सलाम की डालियां लेके आती है। हुजूर की मोहब्बत पढ़ने वालों, हुजूर की मोहब्बत हाथों में शराब नहीं, रब की किताब लेके आती है। और हुजूर की मोहब्बत इंसान के हाथों में भाग नहीं, मदीने का रंग लेके आती है।
اس واسطے آج کے دن اقبال نے یہی پیغام دیا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔